Welcome again in the third class basic physics series of lecture class 11 and 12. In the last class we discussed about the addition of vectors. In that particular case we had two vectors P and Q and we considered the angle between P and Q is theta. So on the basis of the given input P and Q, we find out the expression for the resultant of these two vectors P and Q. And what was the expression? Perhaps you all are now familiar with it. It was under root P square plus Q square plus 2 PQ cos theta. We found out the expression, we derived the expression, and now we see that the minimum value of cos theta is -1 and the maximum value of cos theta is +1. So when cos theta is -1, this gives the minimum value of the resultant. What was the minimum value? Plus Q, what was the minimum value? P minus Q. Mod of P minus mod of Q means the difference of the magnitude of two vectors gives the minimum value of the resultant. And this minimum value will occur only if the cos theta is -1, that is theta is 180 degree. एकदम नीचे करके रखना. So this was our triangle. This is P, this is Q, this is the angle between them. So P plus Q R. We found out the expression for R. So in this case, if we add two vector P and Q, where magnitude of P is mod P, magnitude of Q is mod Q, then we found the expression for R by using the Pythagoras theorem only here. Using the Pythagoras theorem, that is AD square plus DC square equal to AC square. AC square is the R. So here we found out the expression, putting the value. What was the expression? R equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. So we know that the minimum value of cos theta is -1. So -1, and this will happen only when theta is 180 degree. It means when the angle between the two vector is 180 degree, it gives the value of cos theta -1, and when we give the value of cos theta -1, this expression becomes the minimum. So the minimum value of R happens only when the cos theta is -1, and when we put cos theta -1, what happens? R minimum is mod of P minus mod of Q. This gives the minimum value. In the same way, when we put +1, value of cos theta +1, this gives the value P plus Q for any value. For any value of the angle between 0 to 180 degree, the value of resultant is in between minimum and maximum, R mean R max, meaning that minimum is mod of P minus mod of Q, that is the difference of the magnitude of the two vectors, and here this is the sum of the magnitude of the two vectors. So for any angle, if angle is 30 degree, 120 degree, 180 degree, 140 degree, 150 degree, 179 degree, anything else between, when theta varies from 0 degree to 180 degree, the value of the resultant varies from minimum to maximum. So minimum happens at 180 degree and maximum happens at 0 degree. So from 180 degree to 0 degree, minimum and the maximum value of the resultant of these two vectors can be found, because for any value of theta between 0 to 180 degree, cos theta is not at minimum -1, not at maximum +1. So this gives the resultant. So minimum value is mod of P minus mod of Q, and maximum value is mod of P plus mod of Q. Now see, by using other method, find out this expression for the resultant. It is simple. What was the case? This is P, this is Q, and this was the angle between P and Q
So this gives the resultant we all discussed. Now A, B and C is the triangle. So this is the angle between A and B, theta. So what is the value of this angle? This angle, this is 180 degree minus theta. So now using cosine formula in triangle ABC. What is the cosine formula? See here, if this is A, this is B, this is C, and this is the angle theta, then cos theta equal to A square plus B square. This is two side which makes the angle minus C square by 2AB. This is the cosine formula. You have studied it in trigonometry. So using this formula, what we can write here? Cos 180 degree minus theta equal to this side is AB square plus this side is BC square minus this side minus AC square by 2 into AB into BC. So cos 180 degree minus theta equal to minus cos theta. That gives AB स्क्वायर मीन्स मॉड ऑफ P का स्क्वायर, BC स्क्वायर को क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ Q का स्क्वायर, माइनस AC स्क्वायर को क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ R का स्क्वायर बाई 2 AB मॉड ऑफ P और BC को लिखेंगे मॉड ऑफ Q. यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए कि माइनस 2P Q cos theta इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. यहाँ से आपको R स्क्वायर का वैल्यू निकालेगा तो क्या मिलेगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ये उस तरफ चला जाएगा तो प्लस P Q cos थीटा. यही एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था वहाँ. तो यहाँ से R क्या हो जाएगा? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. तो यहाँ हम लोगों ने दूसरे मेथड से उसी एक्सप्रेशन को निकाला जो कि रिलेटिवली उससे कम टाइम में आपसे निकल जाएगा और आसान भी है, ईजियर है. इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. जस्ट एक फार्मूला कॉसाइन फार्मूला को यूज़ करेंगे. कॉसाइन फार्मूला को यूज़ करेंगे, कॉसाइन फार्मूला को यूज़ करके यहाँ से हम निकालेंगे इसको, ये हो जाएगा. अब यदि डायरेक्शन की बात करें तो आइए इस फिगर में देखते हैं. डायरेक्शन का मतलब है कि हम बता देंगे कि रिजल्टेंट जो मेरा है वह वेक्टर P से कितना डिग्री एंगल पे जा रहा है या Q से कितना डिग्री एंगल पे जा रहा है, या कुछ और रेफरेंस लेकर के यदि मैं बता दूं तो स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड यह है कि जिस टेल से आपने इस लाइन को ड्रॉ किया था, जिस टेल से आपने इस लॉ को ड्रॉ किया था, तो यहाँ से एक्चुअली ये भी लाइन आपको ओरिजिनेटिंग दिखाई देगा और ये भी लाइन आपको ओरिजिनेटिंग दिखाई देगा. तो दोनों लाइन ओरिजिनेटिंग है तो इसी एंगल को क्यों अल्फा एंगल हम मान लेंगे. और इस अल्फा का वैल्यू यदि हम बता दें तो हमको रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता चल जाएगा कि वह वेक्टर P से इतना डिग्री एंगल पे जा रहा है. तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसका नाम D दिया था. यहाँ से आप क्या लिखेंगे? टेन अल्फा
टेन अल्फा बराबर डी सी बाई ए डी। तो टेन अल्फा इक्वल टू डी सी बाई ए डी। डी सी का वैल्यू बताया था हमने, मॉड ऑफ क्यू साइन थीटा, बाई ए डी का वैल्यू, ए डी को कितना लिखेंगे हम लोग, ए बी प्लस बी डी। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, टेन अल्फा इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा बाई ए बी मीन्स पी प्लस बी डी मीन्स क्यू कॉस थीटा। लास्ट क्लास में हमने इस एक्सप्रेशन को निकाला था, आज भी क्लास के स्टार्टिंग में इसको डिनोट किया था। तो यहाँ से टेन अल्फा निकल जाएगा आपको। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स। यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं यदि आप इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़ेंगे अभी तो, नहीं तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि क्यू साइन थीटा, मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये अल्फा का वैल्यू है। मीन्स टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यहाँ से निकाल लेंगे तो ये अल्फा का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। और अल्फा का वैल्यू क्या है, वेक्टर पी के साथ बनाया गया एंगल। मीन्स दिस इज द एंगल मेड विथ वेक्टर पी बाय द रिजल्टेंट वेक्टर पी के साथ अल्फा एंगल बनाता है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और इस तरीके से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ वन वेक्टर इज पी, सेकेंड वेक्टर इज क्यू एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन P प्लस Q का मॉड, मीन्स P प्लस Q को ऐड करेंगे उसका मॉड, जिसको कि हम लोगों ने माना था कि ये R है। तो R कितना होगा, मॉड ऑफ P का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Q का स्क्वायर प्लस 2P Q कॉस थीटा। और डायरेक्शन जो होगा अल्फा वो होगा tan इनवर्स Q साइन थीटा बाई P प्लस Q कॉस थीटा। अब हम लोग ऑलवेज मॉड नहीं भी बोल सकते हैं, यदि सिर्फ P बोलूँ तो आप समझ जाइए कि वह मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा है। तो यहाँ से P और Q इस दोनों एक्सप्रेशन को आप लोग याद रखेंगे और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि इसका सॉल्यूशंस कैसे होगा। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि यदि आपको बोलेगा कि आप P माइनस Q सब्सट्रैक्शन और वेक्टर निकालिए, तो देखिए हम लोग किस तरीके से सोचते हैं। एक वेक्टर है P, दूसरा वेक्टर है Q और उसके बीच का एंगल है थीटा। आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि तुम P माइनस Q बताओ, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलेगा। तो अगर P माइनस Q बोल रहा है तो P माइनस Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P प्लस माइनस Q। P प्लस माइनस Q। तो एक वेक्टर P हो गया, दूसरा वेक्टर माइनस Q हो गया। तो P माइनस Q को हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर P एंड माइनस Q। मतलब P एक वेक्टर Q, दूसरा वेक्टर माइनस Q, इस दोनों का एडिशन जो होगा वही P माइनस Q कहलाएगा। तो इस दोनों के एडिशन के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो ये जो हम लोग किए थे ये P है, ये मेरा क्या था, Q था। तो अब माइनस क्यू मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस का मतलब है ये हो जाएगा माइनस क्यू। तो दिस लाइन जो है यही मेरा क्या देगा, P माइनस क्यू का मॉड। तो यहाँ से P माइनस क्यू करेंगे तो कैसे निकाले थे हम लोग कि इस एंगल को क्या लिखे थे हम लोग,
थीटा। तो डेफिनेटली ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो कॉस का वैल्यू जो इस इक्वेशन में आया था प्लस 2pq कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2pq कॉस थीटा। तो p माइनस q का जो मॉड आएगा वह हो जाएगा आपको अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। क्योंकि अब वेक्टर का एंगल कौन सा होगा, एक वेक्टर यहाँ है, दूसरा वेक्टर यहाँ है, तो ओरिजिनेटिंग ये था, इस वेक्टर का एंगल हमने लिया थीटा, इसका थीटा लिया, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब जो आप कोसाइन फार्मूला लगाइएगा तो दिस और दिस एंगल निकलेगा आपको। तो यहाँ पे आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा माइनस साइन। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और जस्ट ए मिनट, तो P प्लस Q के केस में क्या था, ये एंगल था थीटा। तो अब क्या होगा, ये एंगल क्योंकि यहाँ से ये ओरिजिनेट करता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से ये इस पॉइंट से दोनों का दोनों ओरिजिनेट करेगा, तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पे 1, इस एक्सप्रेशन में हम थीटा की जगह पे 180 डिग्री माइनस थीटा रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बाकी सारे चीज सेम रहेंगे। थीटा की जगह पे सिर्फ हमको 180 डिग्री माइनस थीटा पुट करना था। तो P माइनस क्यू को हम लोग कैसे, P माइनस क्यू को कैसे समझते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर P with minus q, addition of vector P with minus q, this gives the resultant of P minus q. So ultimately हम लोग को क्या मिल गया, P plus Q, जबकि एडिशन किया हम लोगों ने, उसका डायरेक्शन भी हम लोगों ने निकाल लिया। माइनस को भी हम लोग एडिशन के तरह ही देखते हैं, एक्चुअली दिस इज P minus Q, बट वी treat it as the addition of the two vectors. In this case the first vector is P and another vector is minus Q. So P minus Q means addition of P plus minus Q, means one vector is with negative sign. So क्या अब इस पे कुछ सवाल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्या, देखिए when theta equal to 90 degree means P and Q are perpendicular to each other, तो mod of R equal to what, mod of P square plus mod of Q square plus 2P Q, और cos थीटा की जगह पे cos 90 मीन्स 0, तो ये कंप्लीट टर्म 0। तो R इक्वल्स टू mod of P square plus mod of Q square. This is like this, P, this is Q. Then what is the value of this, P square plus Q square root. This is simple Pythagoras theorem candidate. So it is applicable here also because this angle is the 90 degree, और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि इफ both the vector and their magnitude and their resultant having equal magnitude, find angle between them. क्वेश्चन क्या बोलता है, एक वेक्टर P है अपने पास, अब मैं मॉड नहीं लिखूंगा, सिर्फ P लिखूंगा, तो आप लोग समझिए कि ये P का मतलब मॉड ऑफ P है, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ P की बात कर रहा है। दूसरा वेक्टर Q है और तीसरा वेक्टर R है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि P Q और R, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है, मीन्स P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R। तो यहाँ पे अब अगर फार्मूला को यूज़ करेंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो यहाँ से P Q और R तीनों इक्वल है, ऑल आर इक्वल, तो किसी एक वैल्यू को रख लेते हैं तो ये भी हो जाएगा P स्क्वायर, ये P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P, Q के भी जगह पे P और कॉस थीटा। यहाँ से हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, इसको भी P ही लिखेंगे एक्चुअली, कॉस थीटा। तो P स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से 2P स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। कैंसिल, सो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 और कॉस थीटा तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -1/2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब कि यदि दोनों वेक्टर और साथ में उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो आएगा वह क्या आएगा 120 डिग्री। इस तरीके से आप सवाल को सोच करके, कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, आप एंगल निकालना सीखते हैं। उसके बाद इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, कंडीशनल प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे कि इस वेक्टर पे ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, इस तरह से थीटा 120 डिग्री निकल गया आपको। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस पर, किसी एक बुक को रेफ़र करके ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को यूज़ कीजिए। एस सी वर्मा सर जी के द्वारा जो लिखी गई किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, उसको आप रेफ़र कीजिए, उसको पढ़िए और एडिशन पे जितना भी प्रॉब्लम्स है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे, उसको फाइंड आउट कीजिए, ट्राई कीजिए उसको बनाने का। मैं भी एक क्लास, सेपरेट एक क्लास सिर्फ प्रॉब्लम्स पे लूँगा, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स को मैं सॉल्व करूँगा। उससे पहले आप लोग देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ से हम लोग अब वेक्टर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात को यहीं तक रखते हैं। बाकी ये चैप्टर आपको मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है, जहाँ पे आप कंप्लीट डिटेल्स में जा कर के पढ़ेंगे। वहाँ जो यहाँ जो मेरा डिस्कशन का मोटो है, वह डिस्कशन का मोटो ये है कि मैं वेक्टर को उस तरीके से आपके दिमाग में रखूँ कि फिजिक्स में उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या सोचते हैं उसके लिए। क्योंकि फिजिक्स में हम लोग बराबर इस चीज़ को यूज़ करते रहेंगे ऑलवेज, इसके बिना बहुत टफ होगा पढ़ना। इसीलिए ये वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जाइए, अब 2 बार 3 बार पढ़िए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सिंपल है, जो भी कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं या जो पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर मैंने वीडियो में ही फोकस कर दिया है उसको। आप वहाँ पे रुक सकते हैं, देख सकते हैं, उसको एक बार समझिए। फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स एक 15 to 20 मिनट्स का एक लेक्चर होगा। उसके बाद उसी क्लास में या फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज़ करेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पे एक सेपरेट क्लास या वीडियो, जो भी आप बोलिए, वीडियो बनाएंगे, उसको हम अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे वेक्टर्स पे। जब भी हम लोग प्रॉब्लम्स बनाएंगे, ये कंप्लीट डिस्कशन के बाद हम लोग प्रॉब्लम्स का एक क्लास रखेंगे, एक ½ एन आवर का एक क्लास होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को यूज़ किया जाएगा। मैं तब तक चाहूँगा कि आप लोग कम्प्लीटली इसको देखिए, पढ़िए और फिर आइए।